हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास जो है 12th का एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 29। इसमें आज हम करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट यानी मानव अधिवास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हर एक बच्चों के लिए होगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो। अगर उनमें ह्यूमन सेटलमेंट रहेगा तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर जो है अमृत तुल्य रहेगा, तो उनको भी इस वीडियो को देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नेक्स्ट ईयर urban settlement. Urban settlement is the most important point here. According to this census of India, is urban area are those of which is a safely there are condition given below. The all place with the municipalities is a corporation and cantonment board are notified town area and communities etc. All the places with the municipalities corporation and cantonment of board are notified town area is communities etc. All is other place with the safety flowing criteria is a first criteria is a minimum population of 5,000. Second year, at least 75% of male working population engaged in a non-agriculture sector. There is a 75% of male working population engaged in a non-agriculture sector. A density of population of at least 4,000 person per square kilometer. 4,000 per person per square kilometer here. And besides the direction of the census, is the operation is a state and union territories were allowed to be included in a consultations with their state government and union territory. Administration and the census is a commissioner of India. Some places having two districts urban characteristics as urban even. If such a place did not be city is a safety all the criteria mentioned under category and the here such case include a major project colonies, railway colony, area of intensive and industrial development, an important tourist center, etc. Therefore, there are two bordered groups of town and urban settlement here. The place which safety their condition mentioned in a category are known as a tourist town and the condition mentioned in a category and the B here are known as a census town. Urban agglomerations may be consist of any one of the three combinations given below. There is a three combination is important here. A first year, a town and it is a adjoining urban outgrowth here. And two or more contiguous is a town with or without their outgrowth, and a third year city and one or more adjoining town with there is a outgrowing together forming is a continuous as a stretch. There is an important. An example of urban outgrowth are universities, a campus, and cantonment area is a ported area and seaport and airport, railway, colonies, etc. That is important. But one should be remembered that these two towns are not available or permanent.
In each census, towns are subjected to be declassification and reclassification based on their prevalence a condition at that particular time. कहते हैं आज देखा जाए तो सभी चीज़ों की व्यवस्था जो है कुल एक ही क्षेत्रों में जो है सिमट सी गई है, और वो क्षेत्र नगरीय अधिवास। कहते हैं नगर में सारे कुछ सिमट गया है, इसलिए लोग जो है गाँव से जो है नगर की तरफ जो है पलायन कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर नगरीय अधिवास में क्या विशेषता है जिनके कारणों से लोग जो है नगर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कहते हैं नगर कई क्षेत्र कामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ बहुत सी व्यवस्था ऐसी होती है जो गाँव में देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक भी यही है कि नगरीय अधिवास। भारत की जनगणना के अनुसार शहरी और नगरीय क्षेत्र वे हैं जिनमें निम्नलिखित स्थितियाँ मिलती है। पहला तो यही स्थिति बताती है कि नगरीय क्षेत्रों में या तो नगर पालिका अथवा निगम फिर छबनी बोर्ड होगा, यानी नगर उसको कहेंगे जहाँ पर नगर पालिका होगी या निगम होगा, या छबनी बोर्ड भी हो सकता है, अथवा अधिसूचित शहरी क्षेत्र जो है सम्मिलित मौजूद होना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। उसके पश्चात अन्य सभी क्षेत्र जो इसके मानकों को पूरा करता है, यानी और भी क्षेत्र आते हैं जो कुछ मानक होते हैं, कुछ निर्धारित होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट पे उनको उतरना जरूरी होता है। जैसे पहला है कम से कम 5,000 जनसंख्या, यानी कम से कम उस क्षेत्र में 5,000 जनसंख्या होना अनिवार्य होता है। उसके पश्चात है दूसरा कार्यशील पुरुष जनसंख्या कम से कम 75% आकृति क्षेत्र में लगे हों, और देखिए पुरुष जनसंख्या का 75% जो है आकृषि क्षेत्र में लगे होना जरूरी है, यानी जो कृषि नहीं है। जनसंख्या का घनत्व कम से कम 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना ही चाहिए, तब उसको जो है नगर का हम घोषित ऑटोमेटिक कर सकते हैं। यानी 75% जो व्यक्ति हो, पुरुष हो, वो कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों में संलग्न हो। और इसमें दूसरी बात यही बताई गई है कि घनत्व कम से कम 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त जनगणना कार्य में निर्दिष्ट निर्देशों के अंतर्गत जब भारत के राज्यों अथवा केंद्र शासित संघीय राज्यों की सरकारों को जो है सहयोग एवं परामर्श एवं भारत के जनगणना प्रयुक्त के अनुमोदन से कुछ ऐसी भी वसाहतों के जिनके गुण नगरीय क्षेत्र जैसे होते हैं, किंतु नगरीय बस्ती और मूल्य जो है सतो जिनकी वर्णन अनुच्छेद 29.5 में वर्णित है। कहते हैं पुण्यतः लागू नहीं होता हो तो भी उन्हें बसाहटों के नगरीय क्षेत्र में गिना जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी परियोजनाओं के कॉलोनियों के क्षेत्र या फिर पर्यटन विकास केंद्र स्थल इत्यादि सम्मिलित हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, नगर होने के लिए कुछ मानक कंडीशन यहाँ पर निर्धारित की गई है। अब इस प्रकार से शहर तथा नगरीय अधिवासों के दो बड़े वर्ग होते हैं। वे स्थानीय क्षेत्र जो अनुच्छेद 29.5 खंडकन में वर्णित शर्तों के अनुरूप हों, या उन्हें जो है वैधानिक शहर कहा जाता है। दूसरे वर्ग में आने वाले नगरीय क्षेत्र हैं जो कर्नाटका ख में दी गई शर्तों के पुण्य पालन करते हों, और इन्हें जनगणना शहर भी कहा जाता है। नगरीय बसावट के प्रमुख नीचे दिए गए 3 गुणों में से कोई एक गुण हो सकते हैं, यानी यहाँ पर नगर के कुछ गुण दिए गए हैं, उन्हीं में से कोई एक गुण जो है हो सकते हैं। पहला होता है कि मुख्य नगर एवं उसके जुड़े शहरी अभिवृद्धि वाले क्षेत्र, यानी मुख्य नगर एवं उससे जुड़े शहरी अभिवृद्धि वाले क्षेत्र। दूसरा होता है 2 या 2 से अधिक संलग्न मुख्य नगर, यानी उनके अभिवृद्धि क्षेत्र सहित या उसके बिना। तो ये सारे के सारे जो हैं किसी भी नगरीय की मुख्य गुण हो सकते हैं। उसके पश्चात एक बड़ा शहर और उससे संलग्न एक या एक से अधिक शहर के अभिवृद्धि क्षेत्र में इतना संकीर्ण में विकसित हो जाते हैं कि कोई लंबा या जनसंख्या का वितान फैल गया हो, यानी धीरे धीरे कोई भी क्षेत्र जो है एक बहुत बड़ी आबादी में बदल जाता है। तो ये क्षेत्र जो होते हैं जनसंख्या का वितरण फैल गया होता है, और ये जो है बड़े नगर में बदल जाते हैं। नगरीय परिष्ठित क्षेत्र के उदाहरण में विश्वविद्यालय परिसर, छबनी परिसर, समुद्री तट पर बसे शहरों से सटे बंदरगाह के परिसर या फिर उद्यान परिसर हो सकते हैं। इवन कि रेलवे कॉलोनियों को भी परिसर आदि कह सकते हैं। पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि ऐसे शहर कभी भी अस्थायी नहीं होती हैं,
यानी ये क्षेत्र जो है कभी भी स्थायी नहीं होते हैं। प्रत्येक जनगणना में इसे जो है कमावेश उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिला है। इससे इन शहरों का जो अवर्गीकरण और जो है पुण्य वर्गीकरण किया जा सकता है, क्योंकि जनगणना के समय विद्यमान परिस्थितियां निर्णायक होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे का टॉपिक क्या महत्वपूर्णता को दर्शाता है, चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक। द नेक्स्ट ईयर टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, देयर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट here. Like a rural settlement, urban settlement and classified on various bases. However, classification based on size and function are most common. Let us discuss them one by one for here. The here most important point, classification based on a population size. Classification based on population size. According to the population size census of India, classify the urban center into 6 classes. The urban center into 6 classes here. A class wise is the urban settlements and their population are given below in a tabular form. The tabular form that is important. The classification of urban settlement in a first class, the 1 lakh and above here, and class second is a 50,000 to 99,999. There is an important population point here. And third point here is a class third. There is a population here 20,000 to the 49,999. And class fourth here a 10,000 population to 19,999 population is almost is important. And fifth year 5,000 to the 9,999. And there are last year sixth year class is a less than 5,000. And there is another classifier of urban settlement. They classify in the following way. So first of all here town and second here city. And the town here, the place which has a less than 1 lakh population, that is called town. There is a less than 1 lakh population is called town. And city here, urban center having population between 1 lakh to 1 million. There is a 1 lakh to 1 million, that is called cities. The next here, metropolitan city. Metropolitan city here, the city have a population is between 1 million to 5 million. 1 million to 5 million, there is a population called to the metropolitan cities. And mega cities here, the mega cities having more than 5 million population. It is a mega city. Mega city is also here a 5 million population. The next here, functional classification here. Functional classification, this is the most popular and widely accepted classification of the urban place in India as well as in other part of the world. In India is a various scholar attempt to be a classified urban center on the basis of function. But the most popular and widely accepted functional classification was given by the Ashok Mitra and note that is demographer and the register is generally of India. There is important function classification here. And the next here, Ashok Mitras is a functional classification of Indian city. Ashok Mitra is a classification of Indian cities. Ashok Mitras as a classification is a based on a categories of worker and classification of ability in the census of 1961 and 1971. Functional classification of the town and cities could not be used in 1981. Census due to non-ability of town level data and based in an industrial classification of worker into 9 industrial category. There is a worker into 9 industrial categories here. In 1991, and the fourth was made to classify all urban place in terms of their functional character with a slightly modification by adjusting the industrial categories into 5 bordered economic sector. And this classification in the following. The following classification is the most important here. Come the functional classification of urban place.
Here come to the function and classification of urban place here, sector and second here industry category. Their primary activity is the cultivations, agricultural labors and livestock, forestry, fishing, hunting, plantation, orchard and the allied is activities. And the mining and acquiring is also here. And industries here, manufacturing, processing, services and repairs. And also here household industries, another than to household industries, construction workers. There is a types of industries here. The next here trades. Trade is there, trade and commerce. And transport here, transport, storage and communication. And service here, other service. The procedure adopted for the functional classification in 1981 since you was the following. The first year, for each urban, agglomerations and town, there is a percentage of total is a main worker in each of the five sector was worked out. The functional category of UA town was then determined on the following basis here. The most important basis here, if the worker is one sector, considering there is a 40% or more, the UA and the town was classified in the event is a no functional category. And second here B, if the percentage is a one sector was less than 40%, two sector having their large percentage were combined to be C. If they are together, considered there are 60% or more, if so the UA town and was classified in the equivalent by functioning category. And third year C part, if not two sector added up to 60% or more, and three sector having their largest percentage were combined and the UA town was classified in their relevant multi-function category. The next you have to determine the functional category of each UA and town content case where at least 1/4 workers were engaged in one of the fourth activities while there are forestry, fishing, including livestock and plantation, etc. The mining and quarrying is a manufacturing in the household industries and construction. The respective there is a US town has been to classify in their relevant sub-functional categories and provided such activity happen to be their first and second leading function of those US town. Using the above mentioned procedure, all there are 3,697 your town of India, including Jammu and Kashmir, having been classified into different functional categories and flowing result has been obtained by applying the above scheme. The first scheme here, almost half of the UA town is a 1,756 to be precise, and were classified in the first category, primary activity, but they contain only 15.85% of the urban population of the country. The most of town belonging to this category were a small size, and about 2 to 3 third of such a place were having is a mono function character. Well, about 1/5 were multiplicationally is Uttar Pradesh had there is the largest number of 371 such a UA and town. And the next year is 723 US town has industries. Their predominant function is important, and this place accounted for almost half of the urban population. More than one third of this place were having 1 lakh or more population, and each and this place accounted as for more than is a fourth fifth population of the UN town and classified under industry category. Less than half of such a place had is a monofunctional character, and the number of biofunctional place was quite less. Tamil Nadu had the largest number of 101 industry, and U as a town is flowing by the Uttar Pradesh is 91 and Gujarat there 87 under this category. There is the most important category here according to industrials here, and 460 UA towns were classified in the category of trade. But this place is comprised of 7% of the urban population, and most of this is a trading town. UA had a multi-functional
functional in the nature and most of the rest town. UA are the bifunctional in their mature. Uttar Pradesh has the largest number of UA town and 123, and the rest of the state have a very less number of trading towns here. And the next year, only 23 UA towns were classified as a transport accommodating and less than 1% of the urban population of country. Most of them are a small town, except of few like Karagangpur as the West Bengal and Mughal Sharis as the Uttar Pradesh. So far as there is a functional character is a concern, and 10 had a mono is a function and another 10 had a multifunction character. The next year, many as a 736 UA town had a service as a leading function, and this accounted for more than 1/4 of the urban population. Most of there is the population, about a 70% live in a class 1 is a town. As far as function are there concerned, is the majority of the town are either multifunctional and biofunctional. Uttar Pradesh has the largest number of such a place, is a 114, followed by the Madhya Pradesh is here 82. After a decline to the discussion in the function classification of cities, the given table and show the function and few name of the cities in India that belong to the particular function. Arrive at a table, there is the most important cities according to the function and name of the city. Administrative here cities are New Delhi, Chandigarh, Bhubaneswar and Gandhinagar, Tiruvananthapuram and Imphal, etc. And industries here, Jamshedpur, Bhilai, Salem, Camborough, Ismailnagar and Surat. And transport here, port cities like Kandal, Kocha, Visakhapatnam, etc. And road and railways of junction like Mughal, Sare, Itrasis, Katan and Karapura, Agra, etc. And the next year, commercially town. The commercial town is Kolkata, Mumbai, Saharanpur, Indore, Chennai, etc. And the meaning town here is Raniganj, Jeres, Dhanbad, Divoi, Ankleshwar and Sirangoli. Singrauli is important here. And cantonment here, cantonment is 6 here, Maruti, Ambala, Jalandhar, Mohas, Pathankot, etc. And educational here, Roorkee, Pilani, Manipal, Aligarh and the Varanasi is the education place here. And religious place here, Puri, Mathura, Madurai, Tirupati, Katras, Amritsar and Allahabad, Varanasi, there are religious towns here. The next year, tourist. Tourists are almost a Nainital, Mussoorie, Simla, Panchhavi, is Udam, Dhams, Oti, and the Mount Abu, Gandak, etc. There is the most important sport of tourist here. नगरों आदिवासियों के प्रकारों के बात करें तो कहते हैं नगर के अगर टाइप्स की बात अगर हम करें कि किस प्रकार की सेटलमेंट है तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते ग्रामीण आदिवासियों के सामान्य नगरीय आदिवासियों कई आधारों पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे प्रचलित एवं सर्वसाधारण वर्गीकरण का आधार जो है नगरीय आदिवासियों के आकार एवं संपादित कार्य होते हैं। तो इसके विषय में जो है नगरीय आदिवासियों के प्रकार के विषय में विस्तार पूर्वक जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तो चलिए इनके हर एक पॉइंट के ऊपर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करें और जानने की कोशिश करें कि नगरीय आदिवासियों के प्रकार किस प्रकार की है। तो यहाँ पर तो पहला आता है कि जनसंख्या के आकार पर आधारित वर्गीकरण, यानी जनसंख्या के आधार पर आधारित किस प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। तो जनसंख्या के आधार पर जो है मानक भारतीय जनगणना नगरीय क्षेत्रों को 6 वर्गों में विभक्त किया है और ये 6 वर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी विषय में आगे हम चर्चा करेंगे कि 6 वर्ग किस प्रकार जो है बांटा गया है, यानी इसको क्लासों में विभक्त कर दिया गया है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है नगरीय आदिवासियों का वर्गीकरण। नगरीय आदिवासियों का वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। इसमें हम वर्ग और जनसंख्या के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए वर्ग 1 में उसको रखा गया है जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो, यानी वर्ग 1 में जो है 1 लाख से
अधिक जनसंख्या हो। लेकिन दूसरे वर्ग में रखा गया है 50,000 से 1 लाख से कम जनसंख्या हो, यानी 50,000 से लेके 99,999 होना चाहिए। ठीक है। तीसरे वर्ग में उनको रखा गया है जो 20,000 से लेके जो है 49,999 जनसंख्या निवास कर रही हो। और चौथे ग्रुप में उसको रखा गया है जो 10,000 से लेके 19,000 जो है 999 तक जनसंख्या हो। और पाँचवें भाग में उनको रखा गया है जो 5,000 से लेके 9,999 जनसंख्या हो। और अंतिम पार्ट में उनको रखा गया है जहां 5,000 से कम जनसंख्या निवास करते हों। तो ये नगरीय अधिवासों के वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं नगरीय अधिवासों का एक और वर्गीकरण है इसके प्रकार। कहते हैं प्रकार के अंतर्गत देखें तो इसमें जो है नगर, शहर, महानगर, अवैध महानगर कहलाता है। यानी सबसे पहले नगर आता है। तो नगर किसे कहते हैं? नगर ऐसे स्थान जिनकी संख्या 1 लाख से कम जनसंख्या हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? नगर का। शहर हम किसे कहते हैं? शहर जो होती है नगरीय स्थान जहाँ जनसंख्या 1 से 10 लाख के बीच में हो, यानी 1 से 10 लाख के बीच में हो, उसे हम शहर कहते हैं। और महानगर किसे कहते हैं? महानगर बड़े नगर जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच में हो, तो उसे हम महानगर कहते हैं। और विद्य महानगर, ये सबसे बड़ा महानगर, उसे कहते हैं महानगर जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से ऊपर हो। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है वर्गीकरण किया गया है नगरीय क्षेत्रों को। उसके पश्चात आता है व्यवसाय मूलक वर्गीकरण। देखिए व्यवसाय के अंतर्गत भी इसको जो है अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। यह देश में शहरी स्थानों के वर्गीकरण का सबसे अधिक प्रचलित एवं सर्वमान्य तरीका है और यह तरीका विश्व के अन्य देशों में भी काफ़ी प्रचलित है। भारत में बहुत से विद्वानों ने नगरीय केंद्रों को विभिन्न व्यावसायिक जो है वृत्तियों कार्यपालकों के ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण के कई तरीके प्रस्तावित किए हैं। यानी बहुत से विद्वानों ने इसको जो है अलग अलग भागों में विभक्त करने के प्रयास किए हैं, पर इनमें सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक जो है स्वीकृति तरीका जो है अशोक मित्रा द्वारा दिया गया था। अशोक मित्रा ने जो है व्यवसाय मूलक वर्गीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जो कि एक प्रसिद्ध जनकिकीय विशेषज्ञ थे और भारत के तकनीकी महापंजीय हुआ करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो आया है भारत के शहरों के अशोक मित्रा की व्यवसाय मूलक विधि द्वारा वर्गीकरण, यानी भारत का अशोक जो है शहरों का जो है वर्गीकरण अशोक मित्रा के व्यवसाय मूलक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वर्गीकरण था। अशोक मित्रा द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण श्रमिकों की श्रेणियों पर आधारित थी। यानी अशोक मित्रा द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण श्रमिकों की श्रेणियों पर आधारित थी और यह श्रमिक श्रेणी जनगणना वर्ष जो है 1961 और जनगणना वर्ष जो है 1971 के आकारकों यानी आंकड़ों से उपलब्ध की गई थी। यानी देखा जाए तो वर्ष 1971 के आंकड़ों से उपलब्ध की गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अशोक मित्रा द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो कि यह श्रमिक श्रेणी जनगणना वर्ष जो है 1961 और जनगणना वर्ष 1971 के आंकड़ों से उपलब्ध की गई थी। परंतु 1981 की जनगणना में दर्शाया गया कि व्यवसाय मूलक शहरों एवं नगरों की वर्गीकरण उपयोग में नहीं लाया जा सका, क्योंकि ये शहर सदर पर औद्योगिक श्रमिकों के 9 औद्योगिक वर्गों में पूरी तरह से विभक्त नहीं किया गया था। फिर भी 1991 में एक जो है अभिनव प्रयास भी किया गया जिसके अंतर्गत औद्योगिक श्रेणियों को 5 समूहों में बांटते हुए भारत के सभी शहरों को उनकी व्यवसायिक कार्यशीलता के आधार पर 5 आर्थिक खंडों में बांट दिया गया। कहते हैं अंतिम वर्गीकरण इस प्रकार किया गया था जो कि नीचे दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं कि नगरीय स्थानों की व्यवसाय मूलक वर्गीकरण किस प्रकार की थी। अब देखिए यहाँ पर जो आया है नगरीय स्थानों के व्यवसाय मूलक वर्गीकरण। तो आर्थिक खंड आपको नजर आ रहा होगा और औद्योगिक श्रेणी। कहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो है कृषि कार्य सम्मिलित थी और दूसरे नंबर पर कृषि श्रमिक था। यानी कहा जाए तो पशुपालन, वन की मछली पकड़ना, शिकार करना, बागवानी, उद्यान की तथा अन्य संबंधित क्रियाकलाप इसमें सम्मिलित थी। साथ में देखा जाए तो खनन एवं उद्यान इत्यादि भी सम्मिलित थी। दूसरे क्षेत्र में जो आता था उद्योग धंधे यानी व्यवसाय। कहते हैं उद्योग धंधे व्यवसाय जो थी उसमें निर्माण, संसाधन की तैयारी, सेवाएं, सुधार एवं मरम्मत सेवाएं सभी जो थी उपलब्ध थी। कहते हैं घरेलू उपयोग की वस्तु बनाने की औद्योगिक इकाई हुआ करती थी और घरेलू उपयोगों की वस्तु बनाने के अलावा
उद्योग भी इसमें बेखूबी सम्मिलित थी। कहते निर्माण कार्य में लगे मजदूर भी इसमें कार्यरत थे। उसके पश्चात तीसरी बात जो थी व्यापार। देखिए व्यापार जो थी, व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्गत इसमें सम्मिलित थी। उसके पश्चात आता है यातायात। यातायात जो था परिवहन, गोदाम, संग्रह, भंडार एवं संचार व्यवस्था के अंतर्गत था, जो कि काफ़ी जरूरी था। उसके पश्चात था सेवाएं। सेवाएं देखा जाए तो विविध सेवाओं के अंतर्गत आता था। तो ये जो था काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाई गई थी। देखा जाए तो 1991 की जनगणना में अपनाई गई कार्य प्रणाली, जिसके द्वारा शहरों के व्यवसाय मूलक आधार पर वर्गीकृत किया गया था, और वो इस प्रकार थी। पहला तो यही बात बताया गया था कि प्रत्येक शहरी बसाहट के समूहों को या शहर सटे कस्बों की बसाहटों में कुल प्रमुख कार्यशील व्यवसायियों का प्रतिशत जो है 5 आर्थिक खंडों में कितना कितना है या गणना द्वारा तय लिया जाता है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। उसके पश्चात दूसरी बात थी कि व्यवसाय आधारित श्रेणी क्रम को प्रत्येक शहरी वसाहत के समूह के लिए इस प्रकार से तय किया गया था। तो पहली तो बात यही थी कि यदि किसी एक औद्योगिक खंड में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 40% या इससे अधिक है, तो ऐसे शहर बसाहट के समूहों को उसी औद्योगिक खंड के एकल जो है क्रियाशील श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। यानी जहां पर 40 व्यक्तियों की संख्या 40% या उससे अधिक हो, तो उनको जो है एक एकल क्रियाशील श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। दूसरी बात थी कि यदि किसी एक औद्योगिक खंड में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 40% से कम हो, तो उसे 2 अन्य इकाइयों में मौजूद जो है संख्या से जोड़ दिया जाता है। यदि दोनों का योग जो है 60% से अधिक है, तो ऐसे शहर वसाहत को समूहों को द्विक्रियाशील श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। तीसरी बात यही दर्शाती है कि यदि 2 इकाइयों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या तब भी 60% या अधिक नहीं होती है, तब 3 अधिकतम जो है प्रतिशत वाली इकाइयों में कार्यरत लोगों की संख्या को जोड़ दिया जाता है, और फिर ऐसे शहर वसाहत के समूह को जो है बहुक्रियाशील श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। उसके पश्चात आता है यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी बाहरी शहरी समूह की वसाहत में 1/4 कार्यशील व्यक्तियों का व्यवसाय के लिए 4 कार्यों में हो, अर्थात वानिकीय यानी मत्स्य पौधे रोपण, पशुपालन इत्यादि हो सकती है इसमें, खनन एवं उद्यान, ठीक है, या वस्तु निर्माण वाले उद्योग और या निर्माण कार्य में कार्यरत हो, तो प्रत्येक शहरी वसाहत की कार्यशीलता श्रेणी का वर्गीकरण उनके संबंधित व्यवसाय कार्यशीलता के आधार पर उप श्रेणियों में किया जाता है। बशर्ते यही है कि उप श्रेणियों की व्यावसायिक कार्यशीलता प्रथम एवं द्वितीय कोटि की ही हो, तो ये काफ़ी जरूरी बन जाती है। कहते हैं उपयुक्त वर्णित विभाजन प्रणाली का आश्रय लेते हुए भारत के सभी 3697 शहर वसाहतों के समूह में जम्मू कश्मीर के अलावा को विभिन्न कार्यशील श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, और इस प्रयास के परिणाम इस प्रकार प्राप्त हुए। कहते हैं इसके परिणाम जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो पहले पॉइंट के अंतर्गत यही बात है कि भारत की जो है कुल शहरी वसाहत समूह के लगभग आधे अथवा 1756 इकाइयों को प्रथम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, जहां के व्यवसाय प्राथमिक दर्जे के थे, परंतु इनकी जो संख्या भारत की कुल शहरी जनसंख्या का 15.85% के बराबर होती है। अब इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अधिकांश शहर काफ़ी छोटे आकार के हुआ करते थे, और इन शहरों को 2/3 स्थानों में एकल व्यवसाय प्रधान कार्यशील व्यक्तियों के होते थे। बाकी 1/3 कार्यशील लोग बहुधंधीय अर्थात जो है विविध व्यवसायों से संबंधित रखने वाले हुआ करते थे। ऐसे शहरों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। यहाँ उत्तर प्रदेशों में संख्या देखें तो 371 थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात दूसरे पॉइंट है देश में 723 ऐसे शहरी वसाहत के समूह हैं जहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय उद्योग से जुड़े हुए हैं। यानी देखा जाए तो ये सारे के सारे उद्योग से जुड़े हैं। कहते खास बात यह है कि इन स्थानों की वसाहत की जनसंख्या के आधे से अधिक भाग नगरीय है, और इसमें से उन स्थानों की संख्या 1/3 से ज़्यादा है जिनकी जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक हो। कहते हैं औद्योगिक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत शहर वसाहतों की 4/5 की जनसंख्या इन्हीं शहरों वसाहतों में रहती है। आधे से कुछ कम ऐसे स्थानों में एकल
व्यवसाय प्रधान कार्यशील लोग रहते हैं, परंतु बहु कार्यशील श्रेणी वाले स्थानों की संख्या काफ़ी कम है। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक यानी 101 इकाई औद्योगिक शहरी बसावटों की श्रेणी के अंतर्गत आती है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश जो कि 91 है तथा गुजरात जो है 87 है, इन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये दर्शाता है कि शहरी बसाहट। अब शहरी बसाहट में क्या है, नगर की उन इकाइयों की संख्या 460 थी जिन्हें व्यापार की श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, और इनका जनसंख्या देश की शहरी जनसंख्या का 7% से बराबर थी। इनमें से अधिकांश व्यापारिक नगरों शहरी बसाहटों के समूह में कार्य की प्राकृतिक बहुकार्यशील होती थी, जबकि शेष बचे नगर देखा जाए तो दीर्घ कार्यशील प्रकृति के होते थे। ऐसे शहरों की जो है सबसे ज़्यादा संख्या 121 हुआ करती थी, और उत्तर प्रदेश में ये थी, जबकि बाकी के राज्यों में व्यापार के संबंध ऐसे शहरों की संख्या बहुत ही कम हुआ करता था। उसके पश्चात आता है परिवहन से संबंधित श्रेणियों में केवल 23 नगर वर्गीकृत किए गए, जिनका देश की नगरीय जनसंख्या में योगदान सिर्फ 1% से भी कम थी। इनमें से अधिकांश शहरी स्थानों का आकार बहुत छोटा हुआ करता था, यद्यपि कुछ बड़े आकार के भी हुआ करते थे, जैसे पश्चिम बंगाल की खड़गपुर और उत्तर प्रदेश में जो है मुगल सराय आदि। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान थे। जहाँ तक कार्यशील व्यवसाय का संबंध है, इन 23 में से 10 शहरी बसाहटों में एक व्यावसायिक लोग रहते हैं, बाकी 10 में विविध व्यावसायिक कार्य वाले लोग हुआ करते थे। उसके पश्चात पांचवी बात यही दर्शाती है कि करीब 736 ऐसे शहरी बसाहट वाली इकाई देश में है जिनमें विविध सेवाओं ही प्रमुख व्यवसाय के साधन हुआ करता था, और इसमें बसने वाले लोगों की संख्या देश की कुल नगरीय जनसंख्या के 1/4 के बराबर हुआ करता था। इसमें से अधिकांश जनसंख्या जो है 70% यानी प्रथम श्रेणी के शहरों में रहती थी। जहाँ तक उनकी व्यवसायिक कार्यशीलता का संबंध है, अधिकांश शहरों के निवासियों का व्यवसाय बहुकार्यशील एवं दीर्घ कार्यशील हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में ऐसे शहरों की संख्या 114 तथा मध्य प्रदेशों में जो है 82 होती थी। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। अब देखिए इसी बात को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय कार्यवृत्ति पर आधारित शहरों का वर्गीकरण। तो कार्यवृत्ति देखिए इधर साइड कार्यवृत्ति दर्शाया गया है और दूसरे साइड शहरों के नाम। प्रशासनिक शहर देखें तो कौन कौन सी है, नई दिल्ली है, चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर और तिरुवनंतपुरम और निफार इत्यादि आती हैं। यदि बात हम करें औद्योगिक जो है कार्यवृत्तियों की, तो औद्योगिक शहरों के नाम जो है जमशेदपुर, भिलाई, सलेम, कोल्हापुर, मोदी नगर, सूरत इत्यादि। तो ये के सारे जो है शहरों के नाम है औद्योगिक के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है परिवहन के अंतर्गत। देखिए परिवहन के अंतर्गत आता है समुद्री तटों के बंदरगाह जैसे कंदाल, कोचीन, विशाखापट्टनम इत्यादि। सड़क एवं रेल मार्ग के जंक्शन जैसे मुगलसराय, इटारसी, कटनी, खड़गपुर, आगरा इत्यादि। तो ये परिवहन के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया है। उसके पश्चात है वाणिज्यिक नगर। वाणिज्यिक नगर देखा जाए तो सबसे पहले कोलकाता आता है, मुंबई आती है, सहारनपुर आता है, इंदौर, चेन्नई। तो इंदौर, चेन्नई सारे के सारे जो है वाणिज्यिक नगर है। उसके पश्चात अगर हम खनन नगर देखें तो खनन नगर जो है रानीगंज, साड़िया, धनबाद, डिबोबाई, अकलेश्वर, सिंगरौली और इत्यादि। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर छबनी देखें तो छबनी तो मेरठ छबनी है, उसके बाद अम्बाला छबनी है, जलंधर छबनी है, महू छबनी है और पठानकोट इत्यादि सारे के सारे जो है छबनी के अंतर्गत विभक्त किया गया है। उसके पश्चात आता है शैक्षणिक यानी एजुकेशन का जो है सेक्टर कौन से हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो इसमें रुड़की, पिलानी, मणिपाल। देखिए मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप जानते होंगे, तो ये शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसके बाद अलीगढ़, वाराणसी इत्यादि प्रमुख है। धार्मिक के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहला नाम तो हमारे समक्ष आता है पुरी का। पुरी आता है, मथुरा, मदोरी, तिरुपति, कटरा, अमृतसर, इलाहाबाद और वाराणसी इत्यादि धार्मिक स्थल के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें पर्यटन के अंतर्गत, तो पर्यटन के अंतर्गत जो है नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमंडी, उदयमंडल, ऊटी
और माउंट आबू और गंगोटक इत्यादि आते हैं। ये सारे के सारे स्थान जो है पर्यटन स्थान है जो भारत की इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने हर एक जो है टॉपिक का विस्तार पर चर्चा किया। कहते हैं सेटलमेंट की हर एक विस्तार, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल एरिया हो, सेटलमेंट हर क्षेत्र के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप इसको शेयर करना चाहते हो या त्रिपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो आप जितना हो सके इस वीडियो के शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा देना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, कहते हैं दोस्तों जितना आप शेयर कीजिएगा उतना दूसरे बच्चे तक जो है पहुंच बनेगी और दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सकेगा। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। अगर आपको त्रिपान स्टडी सेंटर अच्छा लगता है, बाद में कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक त्रिपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए, इसलिए अच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। अब सोचिएगा सेव क्यों किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 8th से लेके MA तक सारे वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं यहाँ पर ट्रिक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। तो आपके बच्चे के लिए, आपके भाई के लिए, बहन के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक रहेगा और सबके लिए समझ की बात यहाँ पर है। तो इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर को अभी सब्सक्राइब कीजिए, सोचना नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आप को कोई शिकायत है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो तो इसके लिए भी प्रावधान है, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से जो है काफ़ी सुधार किया जा सकता है।